کچھ. چلیے تو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ آپ لوگ پڑھیں گے زیادہ. طبیعت زیادہ وہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کا فائدہ بھی ہے اسی میں کہ آپ لوگ زیادہ پڑھیں. آپ میں سے کون پڑھے گا؟ پڑھنا کہاں سے؟ پڑھنا یہاں سے. اردو نظم کا دکنی دور. اردو نظم کا دکنی دور. چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے. اردو نظم کا دکنی دور. اردو نظم کو اگر روایتی مفہوم میں لیا جائے تو اس کے نمونے ہندوستان کے مختلف مقامات پر تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے والے صوفیاء کرام کے اقوال اور ارشادات اور رسائل میں 13ویں عیسوی سے ملتے ہیں. جو اردو زبان کا تشکیلی دور تھا، خواجہ فرید گنج شکر نے خلق اللہ کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ہدایت و نصائح مقامی زبان میں منظوم صورت میں پیش کیے، جس میں فارسی زبان کے اجزاء شامل تھے. مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پہلے مسلمان شاعر ہیں جنہوں نے عرفان اور درد نہیں ہے اور درویشانہ نصائح کو ہندی شاعری کا موضوع بنایا. مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پہلے مسلمان شاعر ہیں جنہوں نے عرفان اور درویشانہ نصائح کو ہندی شاعری کا موضوع بنایا. امیر خسرو کے ساتھ بھی موضوعاتی نظمیں منسوب ہیں جنہیں موضوع اور حیت کے اعتبار سے ہندی شاعری کی مختلف اصناف قرار دیا گیا. ہندوستان کے مختلف علاقوں میں صوفیہ انفرادی طور پر مقامی بولیوں میں عوام کو منظم ہدایت فراہم کرتے رہے. ان کی ہر شعری کاوش موضوعاتی نظموں کی صورت تھی. یہ کوششیں شعری تجربے کے طور پر رواج نہ پا سکیں اور نظم کے جدید تصور سے بعید ہیں. چلیے پہلے اس پیراگراف کو سمجھ لیتے ہیں. چلیے بتائیے اس پیراگراف میں سے 3 بات اہم بتائیے. 3 اہم بات بتائیے. آپ ہی بتائیے. مطلب سر اگر نظم کی ابتدا کے بارے میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے ان کی شروعات ہوئی ہے 13ویں صدی میں. جو صوفیہ یعنی ہندوستان میں مسلمان کی آمد کے بعد جو 13ویں صدی میں صوفیہ اکرام کا دور رہا، وہ اسلام کو پہنچانے کے لیے اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو گاؤں کے علاقے تھے وہاں گئے، جی لوگوں کے درمیان گئے تو انہوں نے مقامی زبان پہ جو دین کی باتیں پہنچائی، وہ کچھ جو منظوم صورتوں میں پہنچائے. ان میں سب سے پہلے ایک صوفی گزرے، یہ فرید گنج شکر کا نام ٹھیک ہے اور اس میں آتا ہے. اس لیے ہم بلوائے تاکہ آپ میں سے ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ کبھی بھی ہم کسی سے پیراگراف پڑھوائیں گے تو آپ سوال کریں گے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کراؤں تاکہ آپ بالکل ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آپ سے جو پیراگراف پڑھوایا جائے آپ سے پوچھ لوں کہ اس میں پیراگراف میں 2 اہم بات بتائی. مثال کے طور پر ایک اہم بات تو یہی ہو گئی کہ اردو نظم کی تاریخ ہم کو پیچھے لے کے جا رہی ہے. جو ہم یاد کر رہے تھے اس سے بھی پیچھے ہم جا سکتے ہیں. کب؟ 13ویں صدی میں. 13ویں صدی میں اردو نظم کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس کے نشانات ملنے لگتے ہیں. نام کیا آتا ہے؟ خواجہ فرید گنج شکر نے خلق اللہ کے لیے نظمیں کہیں، یعنی جو کلام کیے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہ منظوم شکل میں کام کیا. ٹھیک ہے، یہ 2 چیز آپ جان گئے. اسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امیر خسرو کی یہاں بھی موضوعاتی نظمیں تھیں. اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ موضوعاتی نظم کا حل شروع ہوئی، جو کہتے ہیں کہ حالی اور شبلی یا حالی اور آزاد. تو اگر یہ سوال سب سے پہلے سعود مائک بند کر لیجئے تو امیر خسرو کا بھی نام آئے گا. کیا کہیں گے؟ امیر خسرو کے ساتھ بھی موضوعاتی نظمیں منسوب ہیں. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. چلیے اب یہاں تھوڑا سا سر اس میں ایک فن کی بات، یہ جو ہے نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے نظم کو جو چکی نامہ پہلی نظم ہے اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو مانا جاتا ہے، تو ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے 14ویں صدی میں ان کا آغاز شروع ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ مکمل اردو زبان نہیں تھی، اس میں فارسی کا اجزاء زیادہ شامل تھے. لیکن جو ایک صورت ملتی ہے تو بالکل ابتدائی دور ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہے. اور اردو میں جو صحیح طریقے سے اگر ملتا ہے تو یہاں پہ 14ویں صدی میں آ کر کے 1321 میں شاید ان کی پیدائش سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی، تو وہاں سے چکی نامہ جو اردو کی نظم پہلے ملتی ہے.
یہ بنیادی چیزیں یاد رکھیں گے تو تحقیق میں کام آئے گا اور آپ کو آگے لے جائے گا. چلیے آگے پڑھیے، پیراگراف اور پڑھیے. اردو نظم کا پہلا گہوارہ دکن ہے، جس کی ابتدا 9ویں صدی ہجری میں ہوئی. دکنی شاعری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور 14ویں صدی سے 15ویں صدی تک اور دوسرا دور 16ویں صدی سے 17ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے. 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں گولکنڈہ، بیجاپور، بیدر، برار اور احمد نگر کی ریاستیں اس کے لیے قابل ذکر قرار پائی ہیں. گولکنڈہ میں قطب شاہیوں اور بیجاپور میں عادل شاہیوں کا راج رہا. شاہان گولکنڈہ اور شاہان بیجاپور کے علاوہ کئی درباری شاعر بھی اس صنف کے فروغ میں کوشاں رہے. قلی قطب شاہ، ابراہیم عادل شاہ، میرا ہاشمی، سید میرا ہاشمی، نصرتی، ملا وجہی، مقیمی، جنیدی، رستمی رستمی ہونا چاہیے، رستمی ابن نشاطی. رستمی اور ابن نشاطی نوری کے نام نمایاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم جان گئے کہ اردو نظم کا جو گہوارہ ہے پہلے کون سا ہے؟ دکن ہے. دکن. لکھنؤ ہے، دہلی ہے، رامپور ہے، عظیم آباد ہے، یہ سارے آپشن میں رہیں گے. لیکن ہم سے پوچھا جائے گا اردو نظم کا پہلا گہوارہ کون سا ہے، تو دکن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے امتحان پاس کرنا الگ ہے اور تحقیق کرنا الگ ہے. یہ آپ کو یہ ہمیں یاد رکھ کے چلنا ہے، کیونکہ ہم لوگ کلاس روم میں ڈسکشن کرتے ہیں. جو ہمارے سر ہیں نا، کسی کو دیکھتے ہیں نا کوئی گائیڈ لے کر آتا ہے پھینک دیتے ہیں. پھر آج وہ اپنے ہی واقعہ سنا رہے تھے، یہ کتاب کتنی اچھی ہے نا، ہم لوگ بھی اس کو پڑھ کر زیارت نکالے تھے. اردو ادب تنقیدی تاریخ احتشام حسین کی ہے نا، اس میں غلطیاں بھی بہت ہیں تاریخ کی. تو وہ پروفیسر ہیں، چونکہ 17 سال سے پڑھا رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لوگوں سے ذکر کیے تو کہہ رہے سر یہ کتاب واقعی بہت اچھی ہے، ہم لوگ تو اسی کو پڑھ کر جیارت نکالے. تو سر بولے اس میں غلطیاں بھی بہت ہیں. وہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ہمیں پاس کرنا ہے امتحان. کیا پاس کرنا ہے؟ امتحان پاس کرنا ہے. اور اگر ہم ان چکر میں پڑ گئے تو پھر ہمارا امتحان بھی نہیں نکل پائے گا. نہیں کر پایا. تو سب سے پہلے فوکس یہ کرنا کہ امتحان کا پیٹرن بالکل الگ ہے، تحقیق کا پیٹرن بالکل الگ ہے. یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. تو چلیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رک جائیے دکنی شاعری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی سے 15ویں صدی تک، اور دوسرا کہہ رہے ہیں 16ویں صدی سے 17ویں صدی تک. دیکھیے آگے، 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں گولکنڈہ، بیجاپور، بیدر، برار اور احمد نگر کی ریاستیں، 5 ریاستیں تو ہو گئی ہیں. یہاں پہ پھر یہ لکھا ہے کہ 9ویں صدی ہجری میں ہوئی اس کی ابتدا. ہاں جی ہاں، کریں شاہان جی. پھر کہہ رہے ہیں کہ گولکنڈہ میں قطب شاہیوں اور بیجاپور میں عادل شاہیوں کا دور رہا. یہ دونوں بھی یاد کرنا ضروری ہے کہ قطب شاہی جو سلطنت وہ کہاں ہے. تو وہ اوپر جو لکھا ہے کہ اس نظم کا گہوارہ دکن ہے جی. اور اس کی ابتدا 9ویں صدی ہجری میں ہوئی. ہم ایک چیز بتائیں آپ کو، کیا بتائیں کہ ہمیں یہ یاد کر لینا ہے کہ ہمیں امتحان بھی پاس کرنا ہے، تحقیق بھی کرنی ہے نا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا نظم کا گہوارہ ایک الگ چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر کیا باتیں ہوئی تھیں. یہ ہمیں دونوں چیز کو سمجھنا پڑے گا. یہاں کیا کہا انہوں نے کہ دین تبلیغ جو کام انجام دے رہے تھے صوفیہ، ابھی اس زمانے میں اس کا نام نظم تو نہیں دے رہے تھے نا، مفہوم، اگر روایتی مفہوم لیا جائے تو. اس جملہ پر غور کیجیے. جی تو وہی کہہ رہا تھا کہ تب بھی 13ویں صدی تھی تو اور پیچھے چلے گئے 9ویں صدی میں. ہاں یہ 9ویں صدی کا رہے نا، تو 9ویں صدی ہجری کا رہے. تو دیکھتے ہیں اس کو کیا سسٹم ہے. آگے چلیے پڑھتے ہیں اس کو پھر سمجھ میں. اچھا، ہجری اور وہاں عیسوی دونوں میں جی فرق ہے نا. جی 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 ابھی 14ویں صدی ہجری چل رہی ہے نا، 14ویں 15ویں چل رہی ہے. ادھر تو عیسوی میں آگے چل رہی ہے. اس لیے
कोई फर्क नहीं। चलिए, ये तो तब 15वीं ईस्वी आ जाएगा तब लगभग। हाँ तो अभी 15वीं। पहले की बात चल रही है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से पढ़िए ये वाला, कोई और पढ़िए। चलिए नज्म किसी और से भी पढ़वाते हैं, ठीक है, सबको मौका देते। चलिए सादिया पढ़िए। कौन सादिया कौन है, पढ़िए पढ़िए सर जल्दी से। मेरे ख्याल से वो बंदा नवाज को भी पढ़ा दीजिए, ऊपर वाला पैराग्राफ तो अच्छा है यहाँ पे, ताकि ये ठीक बिल्कुल पढ़ लीजिए, इब्तिदाई बात समझ में आए। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, आप ही पढ़िए। हजरत बंदा नवाज गेसो दराज दक्कन के मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उन्होंने कुछ रिसाले तसव्वुफ के लिखे थे। उनके अलावा कुछ नज़में भी उन्होंने कही थी। वो शहबाज तखल्लुस करते थे। उनकी नज्म चक्की नामा का जिक्र खूब होता है। उसके अलावा भी उनकी कई नज़में मिलती हैं। इन सब नज़मों के मौज़ूआत मजहब से मुताल्लिक हैं। सिमा के दिल दादा होने के सबब राग रागिनियों का निहायत उम्दा ज़ौक़ रखते थे। नज्म राम कली उसकी पहली मिसाल है। इसमें शायर कहता है कि मैं उस खालिक का आशिक हूँ जिसने मुझे पैदा किया और मुझ में पिन्हा हो गया। वही महबूब बेमिसल है जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मेरे दिल में बोया और खुद का जमाल देखने के हुजूर को आईना बनाया वगैरह। हैयत के एतबार से ये रागिनियों के वजन पर कही जाने वाली नज्मों की इब्तिदाई शक्ल है। नज्म चक्की नामा में उन्होंने रुक जाइए, चक्की के गीत की सूरत। अब एक सवाल यही आ जाएगा, चक्की नमा को हटा दिया जाएगा, बोलेगा नज्म राम कली किसकी है? नज्म राम कली किसकी है? फौरन आप चाहें तो लिख सकते थे, इनकी एक ख्वाजा बंदनवाज की फिरासत। ठीक है, चलिए इसमें कुछ भी समझने का नहीं था। आप में से कोई और पढ़िए, यहाँ से सऊद के अलावा कोई पढ़िए। पढ़िए एक आदमी कोई। हैयत के चक्की नामा में उन्होंने चक्की के गीत की सूरत में औरतों मजहबी हकायक याद दिलाए हैं। माइक बंद कीजिए, 3 आदमी क्यों पढ़ रहे हैं एक साथ? एक एक करके पढ़िए। अब्दुल अलीम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब्दुल अलीम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज नहीं आ रही है भैया, सब लोग माइक बंद कीजिए। तब खोलते तो एक साथ खोलते, नहीं खोलते। चलिए रुकिए। कार्य के नज्म चक्की नामा में उन्होंने चक्की के गीत की सूरत में औरतों मजहबी हकायक याद दिलाए। औरतों की मजहबी हकायक हो सकता है, औरतों मजहबी हकायक क्या मतलब है? बंदा नवाज गेसो दराज के वालिद सैयद यूसुफ हुसैन शाह राजू की भी चंद नज़में मिलती हैं। अब ये सवाल हो सकता है ये आ जाए कि सैयद यूसुफ हुसैनी शाह राजू का ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज से क्या ताल्लुक है? बाप बेटे का ताल्लुक है। उनकी एक नज्म चक्की नामा के नाम से मशहूर है और ये उर्दू की पहली नज्म करार दी जा सकती है। फनी लिहाज से एक मामूली नज्म है, लेकिन उसकी तारीखी अहमियत बहुत मुसल्लम है। तो जो चीज़ मशहूर है उसको उसी तरह याद रखिएगा। चलिए पढ़िए इसको, ये चलिए शबिस्तान पढ़िए। कौन शबिस्तान है? शाह मीरा जी की एक नज्म मग़ज़ मज़हूब के उन्वान से मिलती है, जिसमें मजहबी बातों की तशरीह की गई है। ये नज्म मसनवी की हैयत में लिखी गई है। शेख बहाउद्दीन याजिन की नज्म याजन दरपर्दा नहीं, बाजन। सोनी के रुक के पढ़िए। अच्छा शेख बहाउद्दीन बाजन की नज्म दरपर्दा सोनी के उन्वान से भी मिलती है। उसके अलावा उन्होंने और कई नज़में भी कही हैं। ये नज्म राग रागनियों के वजन पर है। उसकी खूबी ये है कि उस नज्म में औरत की तरफ से खिताब किया गया है। उसमें इश्किया रंग की आमेजिश है, इसीलिए हिंदी शायरी के जेर असर उर्दू नज़्में औरत की तरफ से खिताब की ये अव्वलीन मिसाल है और यही इस नज्म की अहमियत भी है। जानम के यहाँ भी दीगर बुजुर्गान दीन की तर्ज में राग रागनियों के तहत हम मुसाबका नहीं हो रहा है कि एक रात में पूरे कुरान खत्म कर देंगे तो हाफिज को ज़्यादा नजराना मिलेगा। रुक के पढ़ना है, मैं पूछ लूंगा इसी में सवाल, दिक्कत हो जाएगी। रुक के पढ़िए, पढ़ के आ रही हैं आपके सामने 25-30 लोग सुन रहे हैं, समझ गए? तो मगज़े मजबूत जानम के यहाँ रुक भी जाइए। दीगर
मगज़ मरगूब किसकी नज़म है? शाह मीरा जी। फ़ौरन लिखिए कापी में अपनी। काम दिखाइए भाई, तीसरी यूनिट का काम किसी ने नहीं दिखाया है, कल तक दिखाइए सब लोग। काम नहीं दिखाएंगे तो फिर आगे की यूनिट रोक दूंगा मैं। फ़ौरन कापी में लिखिए मगज़ मरगूब शाह मीरा जी की नज़म है। इसी तरह दरपर्दा सोहनी, ये किसकी नज़म है? शेख बहाउद्दीन बाजन की। फ़ौरन लिखिए कापी में। इसी तरह ना आप आगे बढ़ेंगे उन बच्चों से जो सिर्फ गाइड पढ़ते हैं, गाइड में थोड़ी मिलेगा आपको। चलिए पढ़िए आप। जानन के यहाँ भी दीगर बुजुर्गान दीन की तर्ज में राग रागनियों के तहत नज़में मिलती हैं। इन नज़मों पर हिंदी अल्फाज और जज्बात का गलबा है, इसीलिए सादगी और असर है। नज़्म सूई में सुहागन वालेहाना अंदाज में सहेली को बताती है कि आज की रात सुहाग की रात है। जो इस अजीम रात में महबूब पर कुर्बान हो जाना ही अजमत की निशानी है। जिसने ये मौका खो दिया वो हमेशा पछताएगी, क्योंकि जिसने उस दुनिया में महबूब से मोहब्बत नहीं की वो अगले जहां में महबूब कहाँ पाएगी। एक और नज़्म असावरी में भी औरत की जानिब से खिताब और इश्क हकीकी के मौजू से मुताल्लिक है। बस औरत की जानिब से खिताब और वहदत। बस ये बुनियादी चीज़ें हैं जो जान गए, और भी इसमें मुताला करते चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ हम आते हैं, कुछ देख लेते हैं उर्दू नज़्म का इब्तिदाई दौर शुमारी। कोई और पढ़िए यहाँ से। शिमाली उर्दू नज्म का इब्तदाई दौर शिमाली हिंद में। शिमाली हिंद शिमाली हिंद में अफजल झंझानवी और जाफर जटली के यहाँ उर्दू नज्म के इब्तदाई नमूने मिल जाते हैं। अफजल झंझानवी के विकट कहानी में 1325 अशआर हैं। यह एक मंजूम अफसाना है जो 12 मासे के तर्ज पर लिखा गया है। अफजल को अपनी जवानी के आखिरी दिनों में एक हिंदू औरत से मोहब्बत हो जाती है। वह अपने मुअल्लिमी के पेशे को तर्क कर देते हैं और औरत अपना हाथ अफजल के हाथ में दे देती है। इस नज्म में अफजल ने एक पतिव्रता औरत के जज्बात व कैफियत की मुकम्मल तस्वीरकशी करने की सही की है, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। मीर हसन ने उसे शिमाली हिंद की नुमाइंदा और काबिल कदर तसनीफ करार दिया है। महमूद शेरानी तो उसे उर्दू नज्म की हम कड़ी शुमार करते हैं। उसके अलावा दिगर नाक़दीन और तज़किरा निगारों ने भी उसकी अहमियत को उजागर किया है। बस अब सवाल ये आ जाएगा, शुमाली हिंद में सबसे पहली नज्म कौन सी मिलती है? मंजूम। मंजूम चीज़ क्या है? विकट कहानी अफजल झंझानवी की, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान में रहेगा, ये सब पढ़ चुके हैं दूसरी यूनिट में। ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ लाए थे, आप देख लीजिए यहाँ भी है। उसके बाद फिर वली आ जाएंगे, सिराज औरंगाबाद, ये सब लोगों ने नज्म, ऐसा नहीं कि किसी ने कोई नज्म कही ही नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं, ठीक है। तहरीकात है तो तहरीकात आप पढ़ेंगे 8वीं या 9वीं यूनिट में, तहरीकात में नहीं जाना है। अब सीधे सीधे कहाँ चलना है? हमारे निसाब के मुताबिक थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर हम छोड़ देंगे। जो चीज़ें पहले से जानते हैं उसको रखिए ज़हन में, जो नई चीज़ें आ रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी। क्या किसी को सही आवाज़ नहीं मिल रही है? कट रही है आवाज। आप लोग नहीं बोलिएगा तो नहीं कटेगी, आप लोग सिर्फ सुनिए। नहीं आ रही है तो ठीक हो गई। हाँ, एक साथ आप लोगों को नहीं बोलना है, एक साथ बोलते हैं ना तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। कहाँ चला गया?
मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। सफा निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक सेकंड। ठीक है, कमेंट कीजिए, आवाज आ रही है? बोलना नहीं है। आवाज पहुंच रही है? जल्दी बताइए। सही नहीं सर, नहीं आ रही है जी। आ रही है जी, ठीक तो है। सही नहीं आ रही, क्या मतलब? मेरे ख्याल से आवाज़ साफ आ रही होगी। आप लोग 10 आदमी एक मतलब माइक नहीं खोलेंगे, जिसको कहूँगा वही खोलेगा, ठीक है? आप लोग नहीं बोलेंगे। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी सबसे पहले हैं हमारे यहाँ। अब इनको हम देखेंगे। नज़्म मुफलिसी, बंजारा नामा, ये दोनों दाखिल निसाब हैं, दोनों को देख लेंगे। चलिए, आप में से कोई एक आदमी पढ़िए फौरन। मैं नाम बताता हूँ। चलिए, पढ़िए आसान के लिए। नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी ने जब होश संभाला तो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के सियासी हालात बहुत खराब थे। खास तौर से दिल्ली तबाही और बर्बादी का मरकज बन चुकी थी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह दरानी ने दिल्ली पर हमले करके कत्ल व गारत गरी मचा दी। उस वक्त मोहम्मद शाह बादशाह दहली थे दहलवी थे दहली थे जो जो ऐसो इसरस में गर्क थे। इसके बाद 1748 ईस्वी में 1752 ईस्वी के अरसे में अहमद शाह बदाली ने 3 बार दिल्ली पर हमला किया। ऐसे हंगामा खेजर माहौल में दिल्ली खेजर नहीं, की ऐसे आवाम हंगामा खेज माहौल में दिल्ली की आवाम। के खेजर नहीं, आवाम घर शाकिरा छोड़कर इत्मीनान। खेजर कहाँ लिखा है? हंगामा खेज माहौल में। हंगामा खेज माहौल में दिल्ली की आवाम घर छोड़कर दूसरे शहरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। नजीर की उम्र इस वक्त उम्र 22 से उम्र नहीं, 23 साल। नज़ीर की उम्र उस वक्त 22 से 23 साल की नजीर थी। की उम्र उस वक्त 22 से 23 साल की थी। वह भी अपने नाना नानी के साथ तर्क वतन करके तरके अगर वतन, आगरा तरके वतन। करके वतन करके आगरा चले गए और मोहल्ला ताजगुंज जो ताजमहल के करीब ताजगुंज नहीं, मोहल्ला ताजगंज जो मोहल्ला ताजमहल के करीब में सुकूनत इख्तियार कर ली और हमेशा के मोहल्ला लिए ताज वहीं आबाद हो गए। ये चीज़ हम देख रहे हैं कि नज़्म जब अपने आगाज़ और इर्तिका के दौर से और सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आगाज़ के दौर पर, तो क्या हालात थे? क्या कत्ल गारत गरी आम था, लूट खसोट, इंसानियत पर जुल्म, और पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से मतलब ये पूरी दुनिया नहीं है, बल्कि दिल्ली और दिल्ली के अतराफ़ के जो लोग थे उनको मैं पूरी दुनिया बोल रहा था। उन पर क्या जुल्म सितम नहीं किए गए, क्या कुछ नहीं किया गया। इंसानियत शर्मा जाए, उसके कोई अल्फाज ऐसा नहीं है कि मतलब उस पर सादिक नहीं है जुल्म सितम के ताल्लुक से।
और यूं समझ लीजिए ना कि मौजूदा फलस्तीन बल्कि उससे भी बदतर। तो फिर लोग भाग रहे हैं माँ को छोड़कर, बहन को छोड़कर। कोई बहन को लेकर भाग रहा है तो माँ को मार दिया गया, किसी के बाप को मार दिया गया, किसी के बच्चे को मार दिया गया, खाने के लिए नहीं। क्या सूरत हाल, पढ़िए तारीख को पता चलेगा। बहुत बदतर सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल पे कर दी गई थी कि औरतें अपने शर्म बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद जाती थी। हम किसी दरिंदे के हाथ से जो है कि मेरी इज्जत और आबरू ना लूटी जाए, उससे बेहतर है कि जान दे दिया जाए। क्या सूरत मचा दी थी। ये मुल्क जिस सूरत में भी हमें पेश किया है हमारे आंखों के सामने, ऐसा थोड़ी था। हम गुलामी किसको कहते हैं तस्वूर ही नहीं कर सकते हैं। बात बनाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए तो पढ़ना है तो आप में से कोई एक आदमी पढ़िए आगे। जी, नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर की तारीख़ वलादत के सिलसिले में कोई हतमी तयन करना दुश्वार है। अलबत्ता बाज़ रवायत के मुताबिक उनकी तारीख़ वलादत मोहम्मद शाह सानी के अहद में नादरी हमला 1739 ईस्वी के करीब के साल में करार पाती है। तमाम आरा को मद्देनज़र रख कर ये कहा जा सकता है कि वह 1147 हिजरी व मुताबिक 1735 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मोहम्मद फ़ारूक अज़ीमाबाद के नवाब के मसाहबीन में शुमार किए जाते थे, जिनकी शादी आगरा के मुक़्तादा दार सुल्तान खान की बेटी से हुई थी। नज़ीर से कब्ल मोहम्मद फ़ारूक के घर अक्सर औलादें पैदा होने के बाद फौत हो जाती थी। इस तरह नज़ीर से कब्ल उनके 12 भाई बहन का इंतकाल हो चुका था। दिल्ली में नज़ीर का बचपन नहायत हंसी खुशी से गुजरा। माँ बाप ने उनकी बहुत ही लाड प्यार से परवरिश की। उन्हें खेल तमाशों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, मसलन पतंगबाजी, कबूतरबाजी, कबड्डी वगैरह से। उनके ज़माने में आगरा इल्म व अदब का गहवारा था, जिसका असर नज़ीर की तबीयत पर भी हुआ। नज़ीर की इब्तदाई तालीम के सिलसिले में बिस्मिल्लाह के बाद 1.5 माह में बगदादी कायदा ख़त्म कर लिया। फिर 12 उम्र शुरू होते ही वक्त 12 फातिहा नहीं, हुई। 12 है वो, 12 उम्र, उम्र फिर लिखा है। पारा अम्मा पारा पारा बोलते हैं उसको, पारा अम्मा पारा जी लिखा है वो। चलिए। पारा शुरू होते वक्त फातिहा हुई। इसके बाद शेख सादी की करीमा कराई गई और इसके साथ ही होनहार बच्चे की मौजूनियत और रवायत तबा के जौहर भी खेलते गए। फारसी की दूसरी किताबों खालिकबाजी, आमदनामा, महमूदनामा, अताईनामा वगैरह की तालीम के बाद गुलिस्तान, बोस्तान, सिकंदरनामा, इंशाए खलीफा, ताहिर वहीद, इंशा मुनीर, यूसुफ जुलेखा, अबुल फजल सह नस्र ज़हूरी, कसायद उर्फ़ी वकाकानी वगैरह दरसियात फ़ारसी ख़त्म कराई गई। बस यानी उनके वालिद इनके बचपने के हालात हैं। क्या देखना है? अब थोड़ा सा और हमें तो देख लेना है। इस पर आप पढ़िए। नज़ीर के अखलाक व आदात बहुत उम्दा थे। इखलाक नहीं पढ़ना, अखलाक। क्या पढ़ना है? नज़ीर के अखलाक व आदात बहुत उम्दा थे। फितरन खुशमिजाज, आज़ाद और बेफिक्र थे। यही खुश मिजाजी उनकी ज़िंदगी और उनकी शायरी का सबसे बड़ा जौहर है। उस ज़माने में हजू का आम रवाज होने हजू के नहीं है, बावजूद हज। उन्होंने हज हमेशा हज हजू नहीं है, हज। हजू का आम रवायत हजू का आम रवाज होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने कलम को उस गंदगी से पाक रखा। उनकी तबीयत में ज़राफ़त ज़रूर थी, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए दिल आज़ारी के लिए नहीं। जहाँ तक मुमकिन हो सकता गरीबों और मोहताजों की मदद करते थे। उनकी दोस्ती में सच्चाई और खुलूस से शामिल रहता। हर शख्स से वह खंदा पेशानी के साथ पेश आते। वह किसी भी मजहब में तफरीका नहीं रखते थे। वह हिंदू त्योहारों को भी खुश व खुरूज से मनाते। जहाँ तक बात मजहबी अकीदे की जाए तो जोशो नज़ीर खरोश है।
जोश व खरोश। त्योहारों को जोश व खरोश से मनाते। जहाँ तक बात मजहबी अकीदे की जाए तो नज़ीर अकीदन शिया थे, लेकिन उनमें मजहबी तंग नज़ीरी जरा नज़ीरी नहीं, बराबर ना तन थी। नज़री होगा, तन नज़री। तंग नज़री जरा बराबर ना थी। वह दरवेश सिफ्त इंसान थे। इबादतों सिफत की है, अदायगी दरवेश सिफत, दरवेश सिफत। दरवेश सिफत इंसान थे। इबादतों की अदायगी मामूली तौर पर करते थे, अलबत्ता ताज़ियादारी के एहतमाम पर खुसूसी तवज्जो देते थे। गर्ज ये ज़ाहिर ना होने दिया कि उनका असल मसलक क्या है। नज़ीर की शादी एक शरीफ मुअज़्ज़ज़ आदमी अब्दुर्रहमान खान चुगताई की नवासी और मोहम्मद रहमान खान की बेटी तहूरुन्निसा बेगम से हुई थी। उनसे नज़ीर की 2 औलादें हुई, एक लड़का गुलजार अली असीर और एक लड़की अमामी बेगम। नज़ीर ने आखिरी उम्र में गोशा अमामी नहीं नशीनी पढ़ेंगे उसको, इख्तियार की। उमामा, उमामा होता है ना, उसको उमामा पढ़ लीजिए, उमामा बेगम। एक लड़की उमामा बेगम। नज़ीर ने आखिरी उम्र में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। इंतकाल से पहले 2 बार फालिज का हमला हुआ, जिसमें पहली दफ़ा सेहतयाब हो गए, लेकिन दूसरी मर्तबा 12 अगस्त 1830 ईस्वी को 98 साल की उम्र में उस दर फानी से कोच कर गए। नमाज जनाजा 2 मर्तबा सुन्नी और शिया तरीके से पढ़ाई गई और तजहीज़ क्या है ये? तजहीज़ व तकफीन। तजहीज़ व तकफीन अमामिया तरीक़ा पर हुई। बज़्म नज़ीर की तरफ से नज़ीर की मिजाज पर हर साल मज़ार पर बसंत चश्मी, मज़ार पंचमी, पर बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के रोज़ बड़े खुश व खरूश से मेला लगता था। खुश नहीं है, बड़े जोशो खरोश। ठीक है। सर ये 12 अगस्त नहीं है, 16 अगस्त है सर। हाँ तो 16 ही है, देख लो, मेरा क्लासमेट और दोनों लग रहा है। चलिए आगे ना, कल पढ़ेंगे उससे आगे, अभी हमको तबीयत साथ में करिए, ज़्यादा बैठ नहीं सकते हम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो दोहरा लीजिएगा लेकिन ज़रूर। उर्दू के आगाज़ तो नज़्म का जो आगाज़ है तक होता है उसको। और दूसरी बात ये